Hello everyone, my name is Sam Agarwal and I welcome you all in this TechUpGate classes initiative. And this is my second lecture of the module number 2. So in this lecture, we will discuss more about the types of the phase diagrams. Okay, so let's crack the gate. So we have three different types of phase diagram. So we have first one is binary, involves two elements. Then we have ternary, involves three elements. Then we have multi-phase, that is having more than three elements. Okay, so we also have like unary type of phase diagram, but in the material science we do never study your unary type. Okay, so we always study about the alloys. So alloys, any alloy should be made of minimum of two elements. Okay, so we'll be studying about binary phase diagram in this course. So our main focus is basically our binary phase diagrams only. So we will not study unary, we will not study ternary and multi-phase in details. Okay, so we'll be discussing mainly about the binary phase diagrams. So before starting off phase diagrams or type of phase diagram, let's see what is the Gibbs phase rule. So it defines the degree of freedom, which is given by C minus P plus N. Okay, so what is this degree of freedom F? Okay, so it just like it gives the number of variables. Okay, so it gives the number of variables, so which is required to define the state of the system. Required to define state of the system. Okay, so system, if you're talking about, so this is alloy system, okay, or phase system. So what is the state of the system at a given composition or at a given temperature? So we require that value of F, which is your degree of freedom. Okay, so we'll understand more. So this C, okay, first this P is the number of phases that coexist in a chosen system, which means we can say whether we have a liquid phase or solid phase. So we are talking about materials, or we are talking about the alloys. So we never consider gaseous phase over here. We consider just liquid phase and solid phase. Okay, और मे बी आपको क्या बताया है फेजेस को हम कैसे बोलते हैं यहाँ पे, इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड सॉल्यूशन या सॉलिड फेज की बात करेंगे. सो लाइक डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स विल हैव डिफरेंट फेज. ओके, सो लाइक इफ वी हैव two solids, two solid solution, then we can consider two phases. Okay, and this C is the number of components in the system. Like if you're talking about which alloy system we are using, so maybe we are talking about copper nickel alloy system, or maybe iron carbon alloy system. Okay, so what is the number of components? So if you're talking about like copper nickel kind of alloy system, so we have like two components, one is copper, one is nickel. Okay, then we have F is your degrees of freedom, and N is over here. N over here is non-compositional variable, which doesn't depend on the composition, but it is the temperature and pressure. Okay, so this is kind of a process parameter required. So in case of this Gibbs phase rule for materials or alloys, we consider pressure to be constant at 1 atmospheric. Okay, so we consider the pressure to be constant at 1 atmospheric pressure, which is 1 atmospheric pressure is 1.013 bar. So this is you study in thermodynamics also, or even in fluid mechanics. Okay, so since we have taken the pressure as a constant, so what is left with the N is just 1. So we will take N equals to 1. So what we got is F equals to C minus P plus 1. ठीक है, तो हम जितने भी फेज डायग्राम बनाते हैं वो सब हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बनता है. तो हमने प्रेशर को कांस्टेंट मान के चल लिया है, तो हमारा जो यहाँ पर जो नॉन कंपोजिशनल वेरिएबल का जो आपका वैल्यू है वो हम यहाँ पे 1 लेके चलते हैं. ओके, so this is what you have to use, C minus P plus 1. Remember, in case of a thermodynamics, when you take this Gibbs phase rule or the Gibbs degree of freedom, ठीक है, तब वहां पे C minus P plus 2 यूज करते थे. यहाँ पे C minus P plus 1 यूज करना है. Make use of this formula properly. Okay, do not get confused. यहाँ पे आप प्रेशर कांस्टेंट लेते हैं, इसलिए n की वैल्यू 1 आती है. ओके, यहीं पे हमेशा प्रॉब्लम हो जाती है. यूजुअली वी सॉल्व विद C minus P plus 2 and we get the wrong answer. Okay, whereas the original the main answer is C minus P plus 1. Okay, देखेंगे how we will get degrees of freedom for different kind of states in any alloy system. तो सबसे पहले समझते हैं how many types of binary phase diagrams exist. Okay, so we usually have like 3 types of binary phase diagram. First one is isomorphous system. So in this system there is complete liquid and complete solid solubility of two components. ठीक है,
कंप्लीट लिक्विड सॉल्युबिलिटी एंड कंप्लीट सॉलिड सॉल्युबिलिटी। मतलब लिक्विड में भी आपको सिंगल फेज मिलेगा, और अगर जब ये आपका क्रिस्टलाइज हो जाएगा या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, तभी भी आपको सिंगल सॉलिड आएगा, which means liquid will convert only one solid. Okay, so like this kind of system is happening, then we can say isomorphous system, like L1 is converting only into S1। मतलब आपका एक ही लिक्विड फेज है जो कि आपको मिल रहा है, जो कि कन्वर्ट होके कूल होके, ओके, अपॉन कूलिंग it is converting into one solid phase, one single solid phase। Okay, so that kind of system, that kind of phase diagram is known as isomorphous system। Okay, so this kind of system is seen in your copper nickel alloy, and then we have gold silver, and then we have gold copper alloy kind of things। Okay, so mostly हम copper nickel से ही समझते हैं सारी चीजों को। So this is the diagram of a copper nickel isomorphous system taken from the Callister। Okay, तो ओवरऑल यहाँ पे जो आपको निकल के आ रहा है ना। अभी इसको अगर बेसिक समझना चाहें तो हमारे पास में कैसा होता है कि आपका एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, ठीक है। अब ये एलिमेंट है तो इसका आपको कुछ आपको टीएम निकल के आएगा। कॉपर का टीएम अप्रोक्सीमेटली यहाँ से देख सकते हैं 1085 डिग्री सेल्सियस है। ओके, देन वी हैव अनदर सिस्टम, यहाँ पे हमने सिर्फ टेम्परेचर से वेरी कर रहे हैं, तो ये हमारा टेम्परेचर का अपना एक्सेस हो गया। सिमिलरली अभी हम यहाँ पे निकल की बात कर रहे हैं, सो निकल वी हैव 1453 है ना, तो ये आपका 1085 है, तो ये यहाँ कहीं पर होगा। तो दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ निकल। ओके, सो नाउ व्हेन यू कंबाइन, ऐसा अभी आप कंबाइन करते हैं जैसे, है ना, तो यहाँ पे 50% पे हमको यहाँ पे कुछ एवरेज वैल्यू निकल के आने चाहिए, टीएम एवरेज निकल के आना चाहिए। ओके, और ऐसा आपने स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन किया है। बट इन एक्चुअल कैसा होता है ना कि ये आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं आता, ये इस तरह से ये आपको इस तरह से एनक्लोज्ड स्पेस निकल के आता है, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरा आपको मशी रीजन निकल के आता है, तो ये इस तरह से कुछ आता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, ठीक है, ऐसा एनक्लोज्ड एरिया निकल के आता है। सो ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये एक सिंगल टेम्परेचर कंडीशंस पे नहीं हो रहा, या एक सिंगल कंपोजिशन पे नहीं हो रहा, इट इज वेरिंग। ओके, विद टेम्परेचर एंड विद कंपोजिशन दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज वेरिंग। ओके, समझेंगे इसको। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली लाइन है, दिस इज नोन एज लिक्विड लाइन, मतलब इसके ऊपर में आपको जो फेज मिलेगा वो टोटल का टोटल लिक्विड फेज मिलेगा। नीचे वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं सॉलिडस लाइन, ठीक है। इसके नीचे में जितना भी आपको फेज मिलेगा सबका सब आपको सॉलिड फेज मिलेगा, अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक लिक्विड फेज आपका एक सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो गया, मतलब देयर इज no two types of liquid phase and there is no two types of solid phase। Okay, one liquid phase and one solid phase। Okay, so and between this and between the liquidus and solidus line, ये जो आपको मिल रहा है ये आपका लिक्विड प्लस सॉलिड रीजन है, मशी रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो फेजेस निकल के आएगा, एक लिक्विड फेज निकल के आएगा, एक सॉलिड फेज भी निकल के आएगा, ठीक है। सो अल्फा प्लस एल, यू कैन सी ओवर हियर अल्फा प्लस एल, यहाँ पे दो फेजेस निकल के आते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे यहाँ पर जो आपका एफ एल है, यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकल के आएगा। सो वी हैव अ फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू सी माइनस पी प्लस 1, है ना, यही है। प्रेशर कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। यहाँ पे कंपोनेंट कितने होंगे, दो हो जाएंगे, एक कॉपर है, एक हमारे पास में निकल है, तो दो कंपोनेंट हो गए। फेज कितना है, माइनस लगाएंगे, 2 माइनस फेज इज 1 बिकॉज वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट लिक्विड फेज, तो 1 एंड देन प्लस 1। तो यहाँ पे आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना निकल के आ गया, यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकल के आ गया आपके पास में 2, ठीक है। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि आपको इस पूरे रीजन में कोई भी स्टेट को डिफाइन करना है तो आपको 2 वेरिएबल का रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर आपको यहाँ पर कोई एक पॉइंट में आपको डिफाइन करना है कि यहाँ पर आपका एलॉय का क्या स्टेट है, ठीक है, या इस सिस्टम का क्या स्टेट है, तो इसके लिए आपको 2 चीज चाहिए। पहला चाहिए टेम्परेचर, दूसरा चाहिए यहाँ पे कॉम्पोजिशन, है ना, कॉम्पोजिशन टीएनसी, है ना, कॉम्पोजिशन सीओएमपी लिख लेते हैं, चलिए। कॉम्पोजिशन यहाँ पे कैसे वेरी कर रही है, तो यहाँ पे एट दिस कॉर्नर वी हैव कॉपर 100%, ओके, कॉपर इज 100% एंड निकल इज 0%, और इस तरह से हम पूरा इस तरह से वेरी कर रहे हैं। यहाँ पर हमको निकल 100% निकल के आता है और जो कॉपर है वो हमारा 0% आ जाता है, और बिटवीन दिस इट विल जस्ट वेरी बिटवीन 0 to 100 बोथ कॉपर एंड निकल। ओके, सो यहाँ पे बात करेंगे एफएल में, तो यहाँ पे आपके पास में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी सॉलिड फेज है, तो सॉलिड फेज एफएस की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट है, एक फेज है, तो यहाँ पर भी हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 निकल के आएगी। यहाँ पर भी कहीं पर भी अब आपको कुछ अगर जैसे ए पॉइंट है, ओके, तो दिस ए पॉइंट इफ यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज द स्टेट ऑफ पॉइंट ए, है ना, तो यहाँ पे आपको 2 चीज चाहिए, एक चाहिए आपको टेम्परेचर, एक चाहिए आपको यहाँ से टेम्परेचर चाहिए, यहाँ से आपको कॉम्पोजिशन चाहिए। ओके,
So you require two variables to define the point A, define the state at point A. Okay. अब यहाँ पे बात करेंगे, अब हमें पॉइंट बी को डिफाइन करना है। ये जो यहाँ पे जो पॉइंट बी आपको दिख रहा है ना, ये, एंड दिस इज इन द रीजन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, ये इस रीजन के अंदर में, मतलब यहाँ पे आपको दो फेज में निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? एक सॉलिड आ रहा है, एक लिक्विड आ रहा है। ठीक है, तो लेट मी क्लियर एवरीथिंग। सो अब आपको ये पॉइंट को डिफाइन करना है ना, यहाँ पर कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आ रही है। तो यहाँ पे कितने आपके पास में फेजेस हैं? दो है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है। तो फॉर्मूला F इक्वल्स टू C माइनस P प्लस 1। यहाँ पे कंपोनेंट कितना है? यहाँ पे कंपोनेंट दो है, कॉपर है, निकल है। ओके, फेज कितना है? यहाँ पे फेज भी दो है, एक सॉलिड फेज मिल रहा है, एक लिक्विड फेज मिल रहा है, तो 2 है ना, एंड देन प्लस 1। यहाँ पे F कितना निकल के आ रहा है? आपको 1 निकल के आ रहा है। कहां पर? इन दिस मशी रीजन, है ना, बिटवीन लिक्विडस एंड सॉलिडस लाइन। मतलब यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि आपको पूरा ना लिक्विड मिलेगा ना पूरा आपको सॉलिड मिलेगा। मतलब इससे ज्यादा आप हीट करेंगे, इस पॉइंट पे से ज्यादा हीट करेंगे तो यार बोल सकते हैं कि मेल्टिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे तो बोलेंगे कि मेल्टिंग आपका एंड हो गया है। तो दिस इज स्टार्ट ऑफ मेल्टिंग, दिस इज एंड ऑफ द मेल्टिंग फॉर द गिवन टेम्परेचर एंड द कॉम्पोजिशन। ओके, सो अब यहाँ पे मुझे पॉइंट बी को डिफाइन करना है, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आर, मतलब आप सिर्फ एक वेरिएबल से आप डिफाइन कर सकते हैं। चाहे तो आप सिर्फ टेम्परेचर बता दीजिए तो आपको इधर से कॉम्पोजिशन निकल के आ जाएगा, चाहे तो आप सिर्फ कॉम्पोजिशन बता दीजिए तो इधर से आपको ये टेम्परेचर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो इन दिस रीजन यू रिक्वायर ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड हाउ वी फाइंड द वेट परसेंट ऑफ फेजेस एंड ऑल दिस, सो उसके लिए वी यूज लीवर रूल। This is very important over here, sorry, not level rule, lever rule. Okay, or we say it tie rule. Okay, tie line, draw of ये जो हम बनाते हैं यहाँ पे एक ऐसा tie line बनाएंगे horizontal. Okay, इसके बारे में समझेंगे आने वाले लेक्चर में, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वांट टू टेल यू इन अ फ्रेश लेक्चर। ठीक है, और उसको ढंग से समझाना चाहूंगा, तो आज के लेक्चर में इसको अभी कवर नहीं करेंगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट मिस दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ओके, गेट में ये काफी बार पूछ चुका है। ओके, चलिए, then second type of binary system is eutectic system. So in this the two components have complete liquid solubility. ठीक है, लिक्विड का एक फेज मिलेगा एंड कंप्लीट सॉलिड इनसॉल्युबिलिटी। सो ये ऐसा होगा कि एक लिक्विड आपका ऐसा दो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो कंप्लीट सॉलिड इनसॉल्युबिलिटी, ऐसा दो आपको फेज निकल के आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे कौन सा निकल के आता है? गोल्ड, सिलिकॉन है, देन दिस बिस्मथ, कैडमियम, इस टाइप के आपको यूटेक्टिक सिस्टम निकल के आते हैं। ओके, यूटेक्टिक टेम्परेचर क्या होता है? सो यूटेक्टिक टेम्परेचर इज टेम्परेचर वेयर द लिक्विडस लाइंस ऑफ बोथ कंपोनेंट्स मीट, है ना। मतलब ये ऐसा एक लिक्विडस लाइन आएगा, एक आपका कंपोनेंट का लिक्विडस लाइन 1, ओके, यहाँ से दूसरी एक लिक्विडस लाइन 2 आएगा। ओके, लाइन 2, और यहाँ पे जिस पॉइंट पे ऐसा ये मीट करेगा, सो ये जिस पॉइंट पे ऐसा मीट करेगा इसको आप बोलेंगे यूटेक्टिक पॉइंट। तो ये कैसा होगा? यहाँ पे ये आपका लिक्विड होगा और यहाँ पे ये आपको इस तरह से यहाँ पे ऐसा दो सॉलिड फेज S1 और S2 निकल के आएगा। ठीक है, सो दिस इज योर यूटेक्टिक पॉइंट। ओके, सो एट यूटेक्टिक पॉइंट one liquid and two solid phases exist in equilibrium। मतलब when you cool a liquid phase, है ना, upon cooling this liquid phase it will convert into two solid phase। okay, so this is your eutectic reaction। okay, और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये होगा तो उसको हम बोलेंगे T इक्वल्स टू T यूटेक्टिक। ओके, और जिस कॉम्पोजिशन होगा उस कॉम्पोजिशन को बोलेंगे एट कॉम्पोजिशन इक्वल्स टू कॉम्पोजिशन यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन बोलेंगे उसको। जिस कॉम्पोजिशन पे होगा उस कॉम्पोजिशन को यूटेक्टिक बोलेंगे, जिस टेम्परेचर पे होगा उस टेम्परेचर को यूटेक्टिक टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, आयरन कार्बन का एक पर्टिकुलर यूटेक्टिक टेम्परेचर होता है, उसका एक पर्टिकुलर यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन होता है ना, तो वो सब हम समझेंगे आयरन कार्बन डायग्राम्स में। सो अब यहाँ पे क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ यूटेक्टिक एलॉय इज लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल एलॉय कंपोनेंट्स, है ना। तो लाइक आपको एक मेल्टिंग पॉइंट निकल के आएगा, लाइक T1 निकल के आएगा आपको 1000 डिग्री सेल्सियस, T2 निकल के आ गया आपको 1400 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपको TE निकल के आएगा ना, इन दोनों का जो यूटेक्टिक टेम्परेचर ऐसा जो आ रहा था ना, ये आपका यहाँ पे ये आपका TM1 है, ये आपका TM2 है 1400, और ये जो है आपका
Okay, this is your TE. So this TE, this will be like less than both, है ना? तो ये ऐसा होगा, like it will be like somewhat 700 डिग्री सेल्सियस और मे बी 800 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो ये जो होगा TE का वैल्यू, ये आपका TM1, इसको हम TM1 बोल लेते हैं, इसको TM2 बोल देते हैं, इसका वैल्यू TM1 और TM2 दोनों से कम होगा. ओके, सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ यूटेक्टिक एलॉय इज लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल एलॉइंग कंपोनेंट. तो मतलब यहाँ पर ये जो आपको पर्टिकुलर जो कॉम्पोजिशन निकल के आएगा ना, परसेंट ऑफ वेट, ये बोलेंगे इस पॉइंट पे जो आपको कॉम्पोजिशन निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका यूटेक्टिक एलॉय. ओके, तो यहाँ पे हो सकता है परसेंट ऑफ आयरन कुछ निकल के आए, परसेंट ऑफ कार्बन कुछ निकल के आए, तो इस तरह से जो एलॉय निकल के आएगा तो वो आपका यूटेक्टिक एलॉय बन जाएगा इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. ओके, तो ये देखते हैं आपका यूटेक्टिक टाइप ऑफ फेज डायग्राम है यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पे वी हैव वन कॉम्पोजिशन ए एंड अनदर कॉम्पोजिशन बी. यहाँ पे जो आपका ए का 100% है और बी का आपका 0% है. यहाँ पे बी इज 100% एंड ए इज 0%. ओके, and this m is melting point of A and this n over here is melting point of B. और ये आपका लिक्विडस लाइन L1 है ना? तो ये देख सकते हैं लिक्विडस लाइन है, तो इसको हम L1 लाइन बोल देंगे, ये आपका L2 लाइन हो जाएगा. दो लिक्विडस लाइन है, मीट कर रहा है कहाँ पे? ऐसा यूटेक्टिक पॉइंट पे मीट कर रहा है. तो ये जो टेम्परेचर दिख रहा है TE टेम्परेचर, ये जो TE टेम्परेचर, दिस इज लेस देन दिस टेम्परेचर एंड दिस इज लेस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द B solid also. Okay, solid melting point of एलिमेंट बी. ओके, और मेटल बी जो भी है यहाँ पर. सो अब यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर में जितना भी पार्ट है, ये जो पार्ट है ये पूरा लिक्विड पार्ट है. इसके नीचे में जैसे आप इस पॉइंट पे ठंडा करके करेंगे, इस तरह से आपको ऐसे दो सॉलिड फेज निकल के आएगा, सॉलिड ए एंड सॉलिड बी, है ना? तो ये क्या होगा, यहाँ पे दो सॉलिड फेज निकल के आ गया है, मतलब दो टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकल के आया. तो मतलब क्या बोला है, जो डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकल के आएंगे उसको हम डिफरेंट फेजेस बोलते हैं, किसमें? सॉलिड सॉल्यूशन के केसेस में. तो यहाँ पर एक लिक्विड फेज आपका दो सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो रहा है ना? तो यहाँ पे ये क्या बोलेंगे कि यहाँ पे सॉलिड सॉल्युबिलिटी क्या है, नहीं है. ठीक है, सो क्या टर्म पढ़ा था हमने यहाँ पे, फिर से रीड करते हैं. कंप्लीट सॉलिड इनसॉल्युबिलिटी. ओके, कंप्लीट सॉलिड इनसॉल्युबिलिटी is what is getting in the eutectic point or eutectic reactions. Okay, and between these two point ये आपका क्या हो रहा है, ये लिक्विडस लाइन है, तो ये आपका सॉलिडस लाइन बन, ये पूरा आपका जो है ये आपका डैश डैश कर रहा है ना, ये जो है इतना, ये पूरा आपका इस तरह से ये सॉलिडस लाइन इस तरह से बनता है. ये जो आपका डैश डैश, लेट मी अगेन डू इट अगेन. ओके, ये जो है आपका, ये आपका पूरा सॉलिडस लाइन है. ओके, तो ये सॉलिडस लाइन है, ये आपका ऐसा इस तरह से ये लिक्विडस लाइन है. ठीक है, इसके ऊपर का जो है पूरा का पूरा लिक्विड है, इसके नीचे का पूरा पूरा सॉलिड है, बीच में कैसा आ रहा है, लिक्विड प्लस सॉलिड ए, लिक्विड प्लस सॉलिड बी, इस तरह से आपका ये मोशी रीजन है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना निकल के आएगा, अभी यूटेक्टिक पॉइंट है ना, यूटेक्टिक पॉइंट पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, चलिए फाइंड करते हैं. एफ ऑफ ई यूटेक्टिक. ओके, सी माइनस पी प्लस 1. कॉम्पोजिशन दो है, सॉलिड ए सॉलिड बी, है ना? सॉरी, एलिमेंट ए एलिमेंट बी, द कॉम्पोजिशन इज 2. सो 2 माइनस फेज कितना है यहाँ पे, इस टीई पॉइंट पे बात करें ना, इस पर्टिकुलर इस पॉइंट पे बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड फेज इज कन्वर्टिंग इनटू S1 प्लस S2. ओके, तो यहाँ पे वी इन्वॉल्व 3 phases. वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट यूटेक्टिक पॉइंट ना, स्पेलिंग गलत हो रही है बार बार, यूटेक्टिक पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे कितने फेजेस हैं, एक लिक्विड आपका दो सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो रहा है, तो फेज वी हैव इज 3. ओके, 3 फेज सिस्टम है यहाँ पे यूटेक्टिक पॉइंट में. अब ये कैसा है, जैसे हमने ट्रिपल पॉइंट निकालता है ना थर्मोडायनेमिक्स में, जहाँ पे आपका लिक्विड फेज, वेपर फेज एंड आपका क्या कहते हैं सॉलिड फेज इज एट इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, है ना? सो सिमिलरली वी गेट लाइक 0.01 डिग्री सेल्सियस वी गेट फॉर ट्रिपल पॉइंट फॉर इन केस ऑफ अ वाटर, है ना? तो वहां पे क्या होता है, तीनों फेज इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो कितने फेज काउंट करते हैं वहां पे, 3 फेज काउंट करते हैं. सिमिलरली यहाँ पर इस यूटेक्टिक पॉइंट में हम यहाँ पे एक सॉलिड फेज है, एक लिक्विड फेज है, दो सॉलिड फेज है, तो कितने फेज निकल के आ गए, 3 फेज निकल के आ गए. तो यहाँ पे 3 लिखा एंड प्लस 1, 2 माइनस 3 प्लस 1, 3 माइनस 3 इज 0. ओके, सो क्या निकल के आएगा, एफ यूटेक्टिक इज 0. ठीक है, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, तो जहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट. ओके, इनवेरिएंट पॉइंट मतलब ये
आपका किसी भी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं है। कोई भी एलॉय सिस्टम में, जो भी यूटेक्टिक एलॉय सिस्टम है, वहां पे ये पॉइंट आपको हमेशा फिक्स मिलेगा। इट डजंट चेंज विद टेम्परेचर, इट डजंट चेंज विद कॉम्पोजिशन। ये आपका फिक्स पॉइंट है जो भी आप एलॉय सिस्टम लेंगे, जो भी आप यूटेक्टिक एलॉय सिस्टम लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर वेरी करके आपको ये पॉइंट मिल जाएगा या कॉम्पोजिशन वेरी करके ये पॉइंट, नहीं, ये फिक्स है। ओके, दिस पॉइंट इज फिक्स्ड। So that's why so many question has been asked in eutectic point, because ये invariant points होते हैं, fixed point होते हैं, तो जो कि fix होते हैं तो उसको study लोग ज्यादा करते हैं। okay, so remember eutectic point is an invariant point where the degree of freedom is 0। चलिए, next type of binary system we have partial eutectic system. This is mainly found in your iron carbon diagram. So this is complete solid solubility, complete this is liquid solubility, complete liquid solubility and partial solid solubility। okay, समझेंगे क्या मतलब है यहाँ पे। so we get in silver, copper, lead, tin and cadmium and zinc on all this। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझते हैं इस डायग्राम से। सो लाइक वी हैव टू डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना, इस तरह से आपको पार्शियल यूटेक्टिक सिस्टम बोलेंगे। ये आपका पार्शियल यूटेक्टिक सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एलिमेंट ए है, यहाँ पे आपका एलिमेंट बी आ रहा है। तो यहाँ पे ए जो है आपका 100% है। लेट मी राइट दिस पॉइंट। ओके, सो आई थिंक ये आपको ऊपर में दिख जाता हो। सो इस पॉइंट पे, ठीक है, ए इज 100% and B is 0%। At this point, B is 100% and A is 0%। ओके, तो ऐसा हमने चलिए इसको A एंड B ऐसे ये पॉइंट है यहाँ पर, तो इसको हम जैसे मान लेते हैं, चलिए X एंड Y से एक टर्म कर लेते हैं ना। यहाँ पे ये X एलिमेंट है, यहाँ पे ये Y एलिमेंट है। ओके, एंड वी विल गेट लाइक कंफ्यूज्ड। और ये जो पॉइंट है ये जस्ट सब पॉइंट A है, पॉइंट B है ना, ये खाली पॉइंट्स है। तो एलिमेंट यहाँ पे एक्स एंड वाई है, तो यहाँ पे एक्स 100% है, वाई 0% है, यहाँ पे वाई 100% है, एक्स आपका 0% है, जैसे अभी किया था कॉपर निकल एंड ऑल दिस थिंग्स में, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं पार्शियल यूटेक्टिक है, मतलब ये आपका हो गया लिक्विडस लाइन, है ना। ये दोनों हो गए आपके लिक्विडस लाइन, ये दोनों हो गया आपके लिक्विडस लाइन। ये पर्टिकुलर ये जो पूरा ये जो यहाँ से ये जो आ रहा है ये है आपका सॉलिडस लाइन। इसके नीचे में आपको ऐसा दो फेज निकल के आ रहा है सॉलिड के, अल्फा प्लस बीटा। ये आपका हो गया पॉइंट ई, यूटेक्टिक पॉइंट। ओके, सो अब यहाँ पे पार्शियल कैसा है कि देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपका रीजन है ना, ये इस लाइन को बोलते हैं आप सॉल्युबिलिटी लाइन बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं सॉल्वस लाइन, सॉल्युबिलिटी लाइन और सॉल्वस लाइन। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर शेडेड रीजन है यहाँ पे आपको एक सिंगल फेज मिल रहा है ना। यहाँ से आप आए हैं, ऐसा आप अगर मैं इधर बात करता हूँ, आप ऐसा इस पॉइंट से, अगर मैं इसको पॉइंट 1 बात करता हूँ, इस पॉइंट से जैसे आप ऐसा धीरे धीरे आप इसको कूल कर रहे हैं, कूल करते हुए आप अगर यहाँ 1 डैश तक आते हैं, है ना, सेम कॉम्पोजिशन पे, ये जो आपकी कॉम्पोजिशन, ये पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन है, इस कॉम्पोजिशन पे आप इस टेम्परेचर पे थे, या आप कुछ टेम्परेचर टी आप बोल सकते हैं, लाइक वेरी वेरी हाई टेम्परेचर है तो TH बोल सकते हैं ना। तो TH से आप आए थे इस कॉम्पोजिशन में, तो लिक्विड फेज था। फिर आप जैसे जैसे धीरे धीरे कूल करके आप यहाँ 1 डैश में आए, जिसका टेम्परेचर हम बोल सकते हैं, जैसे कोल्ड है तो TC बोल दिया, ठीक है, तो TC तक आप आए, तो आपको क्या मिल रहा, आपको लिक्विड फेज आपको कंप्लीटली आपको एक सॉलिड फेज में अल्फा में आपको मिलता है। ठीक है, सो लाइक इन दिस रीजन हम बोल सकते हैं 1 से 1 डैश में क्या हो रहा है आपका, 1 लिक्विड फेज इज कन्वर्टिंग इनटू 1 सॉलिड फेज, मतलब यहाँ पे सॉलिड फेज कौन सा है, अल्फा बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंगल 1 फेज मिला। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको वही मिला, इसको हम पॉइंट 2 बोल देंगे। ये हमारे लिए बीच वाला जो पॉइंट 2 डैश होगा, यहाँ पर भी वही हो रहा है, एक लिक्विड फेज आपका एक सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बीच में अगर यहाँ पर इधर कहीं पे देखेंगे 3 पॉइंट में, 3 पॉइंट एंड 3 डैश में, तो एक लिक्विड फेज, यहाँ पे एक लिक्विड फेज आपका 2 सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे एक लिक्विड फेज 2 सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो रहा है। तो कैसे बोलेंगे कि आपका पार्शियल यूटेक्टिक सिस्टम है ना, नॉट कंप्लीट, पार्शियली यूटेक्टिक। पार्शियल यूटेक्टिक का क्या है, पार्शियल सॉलिड सॉल्युबिलिटी, है ना, थोड़ी सी सॉलिड सॉल्युबिलिटी है, सिर्फ ये आपका एंड, ये ऐसा एंड कंपोजिशंस पे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्शियल यूटेक्टिक सिस्टम। थोड़ा सा और समझते हैं। सो अल्फा क्या है, यहाँ पे जो अल्फा की बात हो रही है, सो अल्फा इज द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ बी इन ए। ठीक है, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे लेट्स बी इन बी नहीं लिखते हैं, एक्स एंड वाई से डील कर रहे थे ना, तो यहाँ पे हमने क्या बोला है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे ऐसा वाई है
है ना, तो बोल सकते हैं ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ y इन x, ओके, y इन x। और ये यहाँ पे क्या है, बीटा, यहाँ पे जो बीटा फेज है, तो यहाँ पर जो सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ x इन y, है ना, तो यहाँ पे आपका जो सॉल्वेंट है अल्फा फेज में जो सॉल्वेंट है वो x है और जो सोल्यूट है वो y है। सो इट इज द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्वेंट x, सोल्यूट y इन द सॉल्वेंट x, एंड बीटा इज सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ, अब यहाँ पे बीटा फेज में आपका सॉल्वेंट क्या है, इज दैट इज y, सोल्यूट क्या है x, ठीक है। सो इस तरह से हम इसको अल्फा एंड बीटा के से बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट P और पॉइंट Q आ रहा है, सो दिस इज, अब इस तरह से देख सकते हैं, ये मैंने क्या बोला था, इसको सॉल्युबिलिटी लाइन बोला था, है ना, ये जो PA लाइन है और ये जो आपका QB लाइन है ना, इसको सॉल्युबिलिटी लाइन बोला था या फिर सॉल्वस लाइन बोला था। तो इस तरह से जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, क्या बोला, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सॉल्युबिलिटी लिमिट बढ़ती है, जैसे शुगर सिरप में पढ़ा था, है ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी लिमिट बढ़ रही है। तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, सॉल्युबिलिटी लिमिट बढ़ रही है। तो ये जो पॉइंट P निकल के आता है, सो ये क्या बताता है, दिस इज द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ, ओके, यहाँ पे अगेन B ले लिया है, सो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ Y इन X, ओके, Y इन X और B इन A, जो जैसा भी समझ में आता है, ठीक है। एंड पॉइंट Q क्या है, तो ये क्या बता रहा है आपका, यहाँ पर भी आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, किसकी, X की बढ़ रही है Y में, बिकॉज X इज द सॉल्यूट, Y इज द सॉल्वेंट। सो पॉइंट Q इज द मैक्सिमम सॉल्यूट ऑफ X, ओके, इन Y एट यूटेक्टिक टेम्परेचर। समझ में आ रहा है ना, बेसिक चीजें हैं, कहीं पे आपका X सॉल्यूट है, कहीं पे Y सॉल्यूट है, ओके। सो इस तरह से आपका सॉल्युबिलिटी लाइन इसको बोलते हैं, या फिर सॉल्युबिलिटी लिमिट लाइन, लिमिट लाइन, या फिर इसको हम सॉल्वस लाइन बोलते हैं, दोनों की यही पे जो लाइन है, ओके। सो दिस लिक्विडस लाइन, जो लिक्विडस लाइन जितने भी हैं, सो दिस इट सेपरेट्स द लिक्विड फेज फ्रॉम द लिक्विड प्लस सॉलिड फेज रीजन, ये वही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। एंड व्हाट इज solidus line? So solidus line on the phase diagram separates a solid phase from solid plus liquid phase region, है ना, तो ये देखेंगे। तो ये liquidus line है, ये जो ब्लू से आपको ऊपर वाला ये जो ऐसा बना है tangents करके, ओके, तो दिस इज योर liquidus line। So liquidus line separates liquid phase and one solid and liquid phase, ओके। अब इसी तरीके से यहाँ पे ये solidus line है, ये आपकी solidus line है, नीचे वाली जो horizontal line है, तो it separates, okay, it separates what? इट सेपरेट्स सॉलिड फेज फ्रॉम सॉलिड प्लस लिक्विड फेज, है ना, तो ये आपका सॉलिड फेज नीचे वाला है, इट सेपरेट्स सॉलिड फेज फ्रॉम सॉलिड प्लस लिक्विड फेज, है ना, यही चीज है, वो अंडरस्टैंडिंग की बात है, किस तरह से क्या लिखा हुआ है, ओके। कभी कुछ घुमा के आपको कैसे भी ग्रामेटिकली उसको कॉम्प्लेक्स बना के क्वेश्चन पूछ ले, तो एटलीस्ट ये सब आपको रीड होना चाहिए, ओके। एंड व्हाट इज सॉल्युस लाइन, वही जो सॉल्युबिलिटी लाइन जो बोला है, सो ऑन अ फेज डायग्राम सेपरेट्स द सॉलिड फेज फ्रॉम टू सॉलिड फेसेस, है ना, एक सॉलिड फेस को दो सॉलिड फेस से अब जब आप उसको सेपरेट करते हैं, देन यू गेट सॉल्वस लाइन, ओके। तो ये देखते हैं यहाँ पर, तो ये सॉल्वस लाइन है PA एंड QB, तो ये क्या कर रहा है, एक सॉलिड फेस को दो सॉलिड फेस में सेपरेट कर रहा है, यहाँ पर भी QB जो है एक सॉलिड फेस बीटा को दो सॉलिड फेस अल्फा एंड बीटा से उसको सेपरेट कर रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज योर सॉल्वस लाइन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, नथिंग एल्स। दिस सॉल्वस लाइन, दिस इज आल्सो नोन एज solubility limit line, solubility limit line, किसी बुक में कुछ मिलेगा, किसी में कुछ मिलेगा, दोनों का काम वही है, ओके। चलिए, तो ये हमने कुछ कॉपर और ये सिल्वर का पार्शियल यूटेक्टिक सिस्टम है, सिमिलरली, है ना, अब ये ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये आपको निकल के आ रहा है ना, दिस इज टू लिक्विडस लाइन, ये जो ये लिक्विडस लाइन है, ये भी लिक्विडस लाइन है, दोनों मीट कर रहे हैं कहाँ पर, E पॉइंट पे, विच इज यूटेक्टिक पॉइंट। एंड ओवरऑल दिस, ये इतना जो रीजन है ये आपका सिंगल फेज दे रहा है सॉलिड में, यहाँ पर भी सिंगल फेज सॉलिड आ रहा है, और यहाँ पे कैसा आ रहा है आपको, दो सॉलिड फेजेस आ रहा है, अल्फा एंड बीटा, ओके। सो ये पॉइंट जो है, ये आपका मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है किसका, सिल्वर का इन कॉपर, और ये जो पॉइंट है, ओके, दिस पॉइंट G, ये B है, ये G है, तो पॉइंट G क्या डिनोट करता है, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर इन सिल्वर, है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉपर इज सॉल्यूट एंड सिल्वर इज सॉल्वेंट। समझना है कहाँ पे सॉल्यूट होता है, कहाँ पे सॉल्वेंट होता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको बस ग्रामेटिकली ऊपर नीचे कर देगा एंड वी गेट कंफ्यूज्ड, ऐसा कुछ बहुत बड़ी इसमें ऐसा डिफिकल्टी नहीं है समझने में,
है, स्टिल पीपल गेट कंफ्यूज। तो आई होप कि आप लोग को ये बेसिक्स समझ में आया हो। ओके, यूटेक्टिक, पार्शियल यूटेक्टिक, आइसोमॉर्फस सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव डिफरेंट फेज ट्रांसफॉर्मेशंस। तो जैसे यूटेक्टिक फेज ट्रांसफॉर्मेशन जैसे आपने देखा था, लाइक वी कन्वर्ट वन लिक्विड इनटू टू सॉलिड फेजेस। सिमिलरली वी हैव 2-3 more phase transformations. So let's see. So first one is eutectic, where we convert liquid to two solid phases, and this conversion is upon cooling. Okay, and the reverse takes place when we do this on heating. Okay, so solid and two solid phases upon heating will convert into one liquid phase. Okay, and eutectoid is the conversion of one solid phase into two solid phases upon cooling. ओके, सिमिलरली ये अगर उल्टा करेगा अगर आप हीट कर देंगे, है ना। यहाँ पर भी ऐसा टेक्टिक आ जाए तो वहां पे एक लिक्विड आ जाता है, जहाँ पे टेक्टॉइड आ जाए वहां पे ऐसा सॉलिड आ जाता है। अभी इसको याद करने का थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ मैं, फिलहाल देखते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव पेरिटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। इन दिस वी कन्वर्ट वन लिक्विड प्लस सॉलिड इनटू वन सॉलिड, है ना। तो ये अपॉन कूलिंग। तो लिक्विड प्लस सॉलिड लाइक अल्फा, एल प्लस अल्फा गिव्स यू बीटा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये फेज अलग होगा, ये फेज अलग होगा, तो एल प्लस अल्फा गिव्स यू बीटा। सो ये होता है आपका पेरिटेक्टिक रिएक्शन, यूजुअली फाउंड इन आयरन कार्बन डायग्राम। ओके, विल सी दिस आल्सो। तो ये कब होता है आपका, कूलिंग पे होता है। सिमिलरली वी हैव पेरिटेक्टॉइड, यहाँ पे क्या है आपका, दो सॉलिड फेज एक लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा है। कब हो रहा है, अपॉन कूलिंग। अब देखो यहाँ पे ना पेरिटेक्टॉइड और थोड़ा सा यूटेक्टॉइड में ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। रिमेंबर, यहाँ एक सॉलिड फेज कूल होने पे दो सॉलिड फेज में कन्वर्ट होता है, यहाँ दो सॉलिड फेज कूल होने पे एक सॉलिड फेज में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे कूलिंग से तो थोड़ा बहुत आदमी फिर भी याद रख लेता है। अब ये लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी हीटिंग दे देते हैं ना, लाइक ऐसा हीटिंग वाला दे देंगे, तो हीटिंग वाले में फिर चीजें उल्टा हो जाता है, इसमें वी गेट कंफ्यूज्ड। तो हमको एक सिरा पकड़ना है, आप सिर्फ कूल कूल वाला याद कर लिए, हीट हीट वाला उसी हिसाब से हम निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें सारी कंडीशंस कूलिंग के लिए समझनी है, सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद। देखो जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगे, सिमिलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन लोगे, कंफ्यूजन बढ़ता है। तो आप सिमिलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन लेने की जगह एक इंफॉर्मेशन लीजिए और सिमिलर काइंड ऑफ वो आप उसी से यू कैन डिराइव इट, है ना। सो कूलिंग का पता है तो हीटिंग का आप निकाल सकते हैं, है ना। तो इसलिए कंफ्यूजन कम हो जाता है। तो यूटेक्टॉइड एक सॉलिड दो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, पेरिटेक्टॉइड दो सॉलिड एक सॉलिड में कन्वर्ट होता है। अब हमेशा कोशिश किया करिए, याद करो आप ये यूटेक्टिक और पेरिटेक्टिक, है ना, इन्हीं दोनों को याद करने की कोशिश किया करो। रेस्ट जो बाकी दो हैं वो अपने आप याद हो जाते हैं। यूटेक्टिक में क्या है, एक लिक्विड दो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो यूटेक्टाइड में जहां पर इधर लिक्विड था वो आपका सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, पेरिटेक्टिक याद कर लिया, लिक्विड प्लस सॉलिड गिव्स यू सॉलिड। ओके, अब ये इसलिए याद करना इजी है क्योंकि ये आप आयरन कार्बन डायग्राम में पढ़ते ही हैं। तो जो पढ़ते ही हैं बार बार आप उसको रीड करते हैं आयरन कार्बन डायग्राम को, तो इसलिए पेरिटेक्टिक एंड यूटेक्टिक फिर भी याद हो जाता है। ठीक है, सो पेरिटेक्टिक इज वन लिक्विड प्लस सॉलिड अपॉन कूलिंग गिव्स यू अनदर सॉलिड, है ना। अब पेरिटेक्टॉइड में कहा है जहां पर लिक्विड है वहां सॉलिड लगा देने का, तो ऐसा दो सॉलिड अपॉन कूलिंग गिव्स यू थर्ड सॉलिड फेज। ओके, सो थोड़ा सा इसको रिमेम्बर करेंगे क्योंकि यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, सिर्फ नाम नाम से ही आपको पूछ देता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ओके, टेक्टिक जहां पर आएगा वहां पे लिक्विड इन्वॉल्व होगा, टेक्टॉइड आएगा वहां पे सॉलिड इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमेशा आप लिक्विड जहां पे इन्वॉल्व होगा उसको याद करिए क्योंकि लिक्विड कहां पर उससे आप रिप्लेस कर सकते हैं सॉलिड को, है ना। चलिए, so let's start with a practice question for today's lecture. So this is GATE 2018 set 2. Please read the question. So we have denoting L as liquid, M as solid. ठीक है, यहाँ पे liquid को L से denote किया है, solid को M से किया है। In the phase diagram with the substitute representing different phases, a eutectoid reaction is described by. कौन सा दिया, eutectoid दिया, सीधा सीधा ऐसा नाम से ही पूछ देगा, नाम दे देगा, यहाँ तीन चार ऐसा रिएक्शन दे देगा। तो eutectoid क्या करता है, आपको यूटेक्टॉइड है। ठीक है, तो वन सॉलिड फेज अपॉन कूलिंग कन्वर्ट्स इनटू टू डिफरेंट सॉलिड फेज। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं अपॉन हीटिंग टू सॉलिड फेज कन्वर्ट इनटू वन सॉलिड फेज, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे M1, ठीक है, अब M क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो वन सॉलिड फेज कन्वर्टिंग टू सॉलिड फेज, ये सही है। ठीक है,
यहाँ लिक्विड वन लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू टू सॉलिड, ये गलत है। वन है ना, तो ये क्या है आपका, दिस इज यूटेक्टिक, तो ये पूरा का पूरा गलत है। वन लिक्विड प्लस वन सॉलिड गिव्स यू अनदर सॉलिड, तो ये आपका पेरिटेक्टिक है, ठीक है, ये भी गलत है। अब ये क्या है आपका, दिस इज टू सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू वन सॉलिड, तो ये कैसा हो सकता है, ये आपका पेरिटेक्टोइड हो सकता है ना, पेरिटेक्टोइड है, क्योंकि अब ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इसने दिया इसी तरह से, एक इसने शुरू किया यूटेक्टोइड, यूटेक्टिक, पेरिटेक्टिक, पेरिटेक्टोइड, बनाने वाले ने उसी तरह से बनाया था। गलती क्या हो गई, इन्होंने यहाँ पर ना कूलिंग लिखा ना हीटिंग लिखा, है ना। सो वेदर इट इज यू आर गेटिंग दीज फेजेस अपॉन कूलिंग, वेदर यू आर गेटिंग दीज फेजेस अपॉन हीटिंग, that is being not mentioned, neither it is mentioned in this line. Okay, so denoting L as liquid, M solid in phase diagram with subscript representing different phases, कहीं पर मेंशन नहीं है whether it is cooled, है ना, अभी कूलिंग हो रहा है कि हीटिंग हो रहा है, तो ये तो मेंशन ही नहीं किया है। तो ये आपका, अगर मैं इस तरह से बोल दूं कि H2 plus H3 अपॉन हीटिंग गिव्स यू सॉलिड फेज, तो ये आपका यूटेक्टोइड भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यहाँ तो मेंशन ही नहीं किया है कि हीटिंग है कि कूलिंग है। इसकी वजह से इनको ना यहाँ पे दोनों आंसर करेक्ट मानना पड़ा था। सो करेक्ट आंसर वाज ए और डी, जिसने भी दोनों में से कोई भी एक आंसर मार्क कर दिया हो वो उसका करेक्ट आंसर हो गया था। तो यहाँ पे उनकी तरफ से मिस्टेक हुआ था क्वेश्चन बनाने वालों की तरफ से, तो फिर उनको यहाँ पे आंसर्स में भी फिर रिलैक्सेशन करना पड़ा। ओके, सो इन दिस केस ए एंड डी बोथ इज करेक्ट। अभी यहाँ पे कूलिंग एंड हीटिंग मेंशन नहीं किया है, दैट्स व्हाई। So next is ESE 2003. So according to the phase rules, okay, please read the question. According to Gibbs phase rule, the number of degrees of freedom of an eutectic point in a binary system is, है ना, eutectic point का binary system का आपको गिब्स फेज रूल निकालना है। F is C minus P plus 1, है ना, बाइनरी फेज है तो ऑब्वियसली कंपोनेंट 2 होगा, यूटेक्टिक पॉइंट है तो यहाँ पे फेज 3 होगा, ठीक है, एंड देन दिस इज गोइंग टू बी 0। सो F is 0, ये भी हमने देखा था, बिकॉज दिस इज नोन एज इनवेरिएंट पॉइंट। ओके, ये जितने अभी हमने पीछे जितने भी रिएक्शन देखे ना, यूटेक्टिक, यूटेक्टोइड, पेरिटेक्टिक, पेरिटेक्टोइड, ये सारे के सारे आपके इनवेरिएंट रिएक्शन ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर योर इनवेरिएंट पॉइंट्स, ओके, इंक्लूडिंग यूटेक्टिक। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, आंसर इज सी। नाउ इन सम ऑफ द like solution, in some of the coaching you may find the answer as 1, okay, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, फॉर्मूला यूज किया है C minus P plus 2 का। जब ये फॉर्मूला यूज कर लोगे तो आंसर 1 ही आएगा, बट दिस इज टोटली रॉन्ग। ओके, आंसर इज F equals to 0, answer is C. So please do not get confused if you find the answer F equals to 1, ठीक है। तो ये अब उन्होंने कैसे किया है, कैसे क्या नहीं किया, that I don't know। eutectic point Fe equals to 0. ESE 1999. So in a eutectic system, two elements are completely, क्या होता है बताइए। तो eutectic में L gives you two solid phase upon cooling, ठीक है। एक लिक्विड फेज दो सॉलिड फेज में कम आपको होता है, तो यहाँ पे क्या मिला है, कंप्लीट लिक्विड सॉल्युबिलिटी, है ना। यहाँ पर नो सॉलिड सॉल्युबिलिटी, है ना, कोई भी सॉलिड सॉल्युबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो फेज निकल के आ रहा है, देखेंगे। सो इनसॉल्युबल इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, रॉन्ग। ओके, ऑप्शन बी सॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट, हाँ ठीक है, हो सकता है। सॉल्युबल इन सॉलिड स्टेट नहीं है, ठीक है। इनसॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, complete solubility in liquid, complete insolubility in solid, so that is your eutectic system, ESE 1999. चलिए next is ESE 2000. So they have asked about peritectic solidification. So peritectic solidification, which means one, अभी क्या लिखा है, one liquid, okay please read now, one liquid combines with the peritectic पूछा है, तो peritectic में क्या है, L plus S1, ठीक है, अपॉन कूलिंग। अभी सॉलिडिफिकेशन पूछ रहा है तो मतलब कूलिंग की ही बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा क्या है, सॉलिडिफिकेशन लिखा है, तो मतलब कूलिंग बोलेगा, ठीक है। सो कन्वर्ट्स इनटू अनदर सॉलिड फेज, यही है आपका पेरिटेक्टिक। देख लेते हैं। सो वन लिक्विड कंबाइंस विद वन सॉलिड टू फॉर्म सेकंड सॉलिड, ये ठीक है। वन लिक्विड सॉलिडिफाइज इनटू टू डिफरेंट सॉलिड, ये रॉन्ग है। ये किसका हो जाएगा, अगर ये ऑप्शन ले लेंगे, ये क्या बोला, L इक्वल्स टू S1 प्लस S2, ये किसका है, दिस इज
यूटेक्टिक, ओके। एंड वन लिक्विड फॉर्म्स वन सॉलिड, ये भी गलत है। ये अगर हो जाएगा तो ये किसका है आपका, आइसोमॉर्फस होता है ये, है ना। वन लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वन सॉलिड, आइसोमॉर्फस। एंड वन लिक्विड फॉर्म्स वन सॉलिड एंड अनदर लिक्विड, वन लिक्विड दिस सॉलिड दिस, ओके, ये भी रॉन्ग है ना, दिस इज आल्सो रॉन्ग। ये शायद मोनोटेक्टिक में आता है, भी देखना पड़ेगा, है ना। दिस इज आल्सो रॉन्ग, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, okay. So this is ESC 2000, option A is correct. So this is all in this lecture. I hope आप लोगों को कुछ missing understanding समझ में आया हो about the different types of phase diagram, binary phase diagram, eutectic type of phase diagram, partial eutectic type of phase diagrams, ठीक है। So in the upcoming lecture we'll discuss about the tie rule, tie line rule or the lever rule for finding the weight percent of different phases within the liquidus and solidus region, ठीक है। तो usually वो question जो है काफी important है gate point of view से, okay। So we'll meet in the next lecture, till then have a good day, thank you।